ইলিগাল পুশব্যাক বন্ধ করো, ইলিগাল পুশব্যাক বন্ধ করো, ভারতীয় নাগরিক হারাস্তি বন্ধ করো, অমানবীয় উচ্ছেদ বন্ধ করো, অমানবীয় উচ্ছেদ বন্ধ করো। বিজেপি সরকার হয় হয়। নমস্কার, পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলে আপনাদের জানাই স্বাগতম। সংবাদ পড়ছি আমি রবি। আসামে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে হিন্দু মুসলিম সংখ্যালঘু বাঙালিদের এবং তফসিলি জনজাতি ও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক কৃষক শ্রমিক সহ গরিব শ্রমজীবী মানুষকে অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশের রাজধানী দিল্লিতেও। শুক্রবার আসাম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের ডাকে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিশাল বিক্ষোভ ধর্ণা সংগঠিত হয়। এই বিক্ষোভ ধর্ণা কর্মসূচিতে দিল্লির বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনের প্রতিনিধিরাও সামিল হন। আসাম সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী খলিফা জানান, যতদিন পর্যন্ত তারা কোনো সুবিচার না পান এবং আসাম সরকারের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ বন্ধ না হয় ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বিস্তারিত দেখতে থাকুন পাবলিক নিউজ নেক্সট চ্যানেলের ক্যামেরায়। মোহাম্মদ খলিফা জিন্দাবাদ, মোহাম্মদ খলিফা জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ। উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় মুছলমান লোকসকলক বিদেশীৰ নামত অত্যাচাৰ কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় মুছলমান লোকসকলক বিদেশীৰ নামত অত্যাচার করা বন্ধ কৰিব লাগিব। অসম সরকার হাই হাই, বিজেপি সরকার হাই হাই, ইলিগাল পুশব্যাক বন্ধ করো, ইলিগাল পুশব্যাক বন্ধ করো, অমানবীয় উচ্ছেদ বন্ধ করো, অমানবীয় উচ্ছেদ বন্ধ করো। মানুহক পুশবেক কৰিব বিচাৰিছে বাংলাদেশত। এইবিলাক ইছ্যু লৈ আজি আমি যন্তৰ মন্তৰত আহি ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আমাৰ এটাই কথা যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ। যদি কোনোবা অবৈধ নাগৰিকে যদি অসমত বসবাস কৰি আছে বা অসমৰ ভূমি যদি কোনোবাই বেদখল কৰি আছে, সেইসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰাক আমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু অবৈধ মানুহৰ নাম লৈ বা বাংলাদেশীৰ নাম লৈ স্বদেশী মানুহক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকক জীৱন নিৰ্বাহ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা কাৰ্যটো আমি কোনো পধ্যেই মানি নলওঁ। আমি অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি দাবী জনাই আহিছোঁ। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি বাৰম্বাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনাত বহিব লাগে। যিমানখিনি সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে গোটেইখিনি সংখ্যালঘু দল সংগঠনৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমত এইসকল মানুহক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে দি থৈছে যে যিসকল মানুহ আচলতে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বা যিবিলাক ফৰেষ্ট লেণ্ড দখল কৰি আছে এইবিলাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি একমত। আমি কেতিয়াও উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। খালি আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নীতি নিৰ্দেশনাখিনি অসম চৰকাৰে পালন কৰি উচ্ছেদ কৰিব লাগে। যিহেতু এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিক, অসমৰ নাগৰিক, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়, গতিকে এইসকলক মানুহক ভূমিহীন মানুহ, নদী গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে আচলতে চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা মানুহ। গতিকে এইসকল মানুহৰ অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে আৰু চৰকাৰো তেওঁলোকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। গতিকে চৰকাৰে সেই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে। प्रमुख मांग क्या है? हमारा एक्चुअल प्रमुख मांग है, असम में जो इलीगल इविक्शन हो रहा है, हिमंत विश्व शर्मा गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम लोगों को देख कर और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको चुन कर हिमंत विश्व शर्मा ने इविक्शन कर रहा है। तो इविक्शन बंद होना चाहिए। इलीगल इविक्शन है, यह एकदम मुस्लिम को टारगेट कर करके ये सब कर रहा है, यह बंद होना चाहिए। जो इलीगल इविक्शन है उसका इविक्शन का पहले जो लोग गवर्नमेंट खास लैंड में बैठा हुआ है वो लोग वहाँ से हटाने से पहले उनको रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन हम लोग देखा है हिमंत विश्व शर्मा जी ने हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करके वो मन मर्जी से ये सब काम कर रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। वो जो इलीगल घुसपैठी का नाम पर मुस्लिम लोगों को जो सताया है वो सताना बंद करना चाहिए। जो टारगेट किया है वो टारगेट बंद करना चाहिए। और असम में वो जो इंडिजिनियस पीपल है उन लोग को सिक्योरिटी
मुख्यमंत्री के लिए हिमंत बिश्व शर्मा जी ने बंदूक का लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, इससे हम लोग का बहुत चिंतित हो। यह गुजरात का जैसा माहौल बनाने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कोशिश कर रहा है। यह सब इलीगल काम बंद होना चाहिए। वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है, जो हम लोग का जो राइट्स है, वो राइट्स वायलेशन कर रहा है हिमंत बिश्व शर्मा जी ने। वो राइट्स बहाल होना चाहिए। हर इंडियन सिटीजन को वो राइट्स मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार से किसी को भी वो अधिकार से आउट नहीं करना चाहिए। यह हमारा पूरा मांग है। किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से इस धरने को पूर्ण समर्थन करता हूं और अपनी बातों को रखता हूं। नौजवानों, आपको मुबारकबाद कि आज इस भागम भाग दुनिया में जहां सब लोग अपने अपने कामों में मस्त हैं, उसमें आप लोग आसाम से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज को बुलंद किया। आप लोग इस बात के लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। साथियों, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है, मैं थोड़ी देर अपनी बात करके खत्म करूंगा। आज जिस तरीके से आसाम नहीं पूरे मुल्क में नफरत की राजनीति को पैदा किया जा रहा है, ये किसी से ढकी और छिपी चीज नहीं है और ये इस मुल्क के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। आसाम में जिस तरीके से पूरे गांव को गांव, एक दो घर नहीं, किसी की एक जमीन इलीगल हो सकती है, लेकिन पूरे गांव को जिस तरीके से रातों रात जिन बुलडोजर लगा के, दो बुलडोजर, तीन बुलडोजर लगाकर पूरे गांव को सफाया कर दिया जाता है, इससे ये साबित होता है कि ये इन सरकारें इलीगल है, आवाम इलीगल नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास वोटर आईडी है, आप ये कहते हो कि राशन कार्ड, आप राशन कार्ड जिनका बना हुआ है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिले हुए हैं, उसके बाद भी वो जमीन कैसे इलीगल हो गई? क्या आपके उन अधिकारियों ने जांच नहीं किया था जब राशन कार्ड बनाया जा रहा था, जब वोटर लिस्ट बनाई जा रही थी, जब आधार उनका बन रहा था, जब वो सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभाग में जाके नौकरी ज्वाइन कर रहे थे? ऐसे बहुत से परिवार, बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। क्या वो सब लोग इलीगल थे जब उनकी जमीनें इलीगल? तो सरकार का एक फंडा है, क्योंकि आसाम के मुख्यमंत्री को, मुझको लगता है, किसी पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे विकास की बात नहीं होती है, सिर्फ आसाम के विनाश की बात। खास करके वहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, किसानों और मजदूरों को वहाँ से जो उजाड़ा जा रहा है अलग अलग नाम से, उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल्ली की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपको अभिनंदन करता हूँ। साथियों, असम में जो हो रहा है उसके बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। असम के जो लोग हैं उसको जानते हैं और असम के अंदर हजारों की संख्या में जो अलग अलग जगहों पे जो उजाड़ा जा रहा है, लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, उसके खिलाफ में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ पे सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, ये जो स्थिति है असम में, जो स्थिति है, तो केवल असम की बात नहीं है। ये जो चीज़ जहाँ पे भी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही है, उनकी जो विचारधारा है उससे हम सभी वाकिफ है, हम सभी जानते हैं कि वो किस विचारधारा को लेके पिछले 11-12 साल से देश में सत्ता में है और किस विचारधारा को लेके पूरे समाज को बदलने का, एक दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी तथाकथित जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पे भी जो ये चीज़ और ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गरीब मजदूर हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, किस तरीके से रातों रात उनको उजाड़ दिया जाता है। यहाँ पे जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक झुग्गी बस्ती था, वहाँ पे रात को 3 बजे भूमिहीन, जो उसका नाम ही था भूमिहीन बस्ती, कालका जी के पास, वहाँ पे रात को 3 बजे जाकर बुलडोजर से पूरी बस्ती को पूरा ढहा दिया गया। और ये चीज़ अलग अलग जगह पे हो रहा है। और उससे भी चीज़ मतलब जो एक दूसरा जो रूप हम यहाँ पे जो पास में गुड़गावा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आप अगर मुसलमान बंगाली है और मुसलमान है तो आपके ऊपर तो ये सरकार का जो निशाना तो है ही है, लेकिन आप केवल बंगाली है, बंगाली बोलते हैं
तो भी आपके ऊपर किस तरीके से वहाँ पे जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। लोगों को उठा के ले जाके जो कोई थाना में उनको नहीं लिया जाता, उनके पास सभी दस्तावेज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन आप बंगाली है और बंगाली बोलते हैं तो ही आपको उठा के लेके जाके थाने, जो थाना नहीं बल्कि जो एक सेंटर अलग अलग जगह पे बना के रखे हैं, पुलिस वहाँ पे उनको इतना अत्याचार कर रही कि आज स्थिति है कि पूरा का पूरा बस्ती खाली हो गया। कोई मुर्शिदाबाद का है, कोई मालदा का है, वो सभी पूरा परिवार के साथ अपना सामान लाद कर बस बुक करके वो गुड़गांव छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये जो चीज है, किरण रिजिजू जो कहते हैं कि 2016 में उन्होंने कहा था कि देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, लेकिन आज तक 2016 से लेकर आज 2025 हो गया, करीबन 9-10 साल हो गया, आज तक उन्होंने किसी को जो उसका पहचान करके उनको नहीं हटाया, बल्कि एक राजनीति के तरीके से जो भाजपा की सरकार है देश में जो हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार पैदा करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। ये देश में जो आपसी भाईचारा था, एकता थी, अमन था, उसको खत्म करके एक नफरत की दीवार पैदा करके जो, और इसमें जो पीस रहे हैं केवल मुसलमान तो पीछे ही रहे, वो तो सबके सामने जग जाहिर है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आम गरीब है, जो मजदूरी करता है, जो दिल्ली के कोठियों में काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, कूड़ा कबाड़ी का काम करता है, वो सभी को वो लोग पीस रहे हैं और उसको हटा रहे हैं। और सबके पीछे अभी साथी जो है उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े लोग का कोठी बना हुआ उसी जमीन पे, ऐसे ही जमीन पे, लेकिन उनको कुछ न करके जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, जहाँ पे आदिवासी है, जहाँ पे जो जंगल में किसी तरीके से रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनको हटा के वहाँ पे जो जमीन है अडानी, अंबानी, रामदेव जैसे और अन्य जो भू माफिया है, बड़े बड़े भू माफिया है, उनको जमीन दिया जा सके। उनके लिए कोई वो नहीं है। आज का ही रिपोर्ट है कि करीबन 1.5 लाख एकड़ जमीन का डाइवर्सन किया गया। जो सरकारी जमीन थी, जो जंगल की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, उसको दूसरे काम के लिए दिया गया। मतलब वो जमीन जंगल की नहीं रहेगी, उसको दूसरे काम के लिए वहाँ पे जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, अडानी अंबानी जैसे या रामदेव जैसे या दूसरे जो भू माफिया है, उनको दिया जाएगा। तो ये जो वो चीज गरीब आदमियों के लिए क्यों नहीं, वो वहाँ पे बसे हुए हैं। आपको असम का मालूम है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में हर साल बाढ़ आता है, पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है, पूरा घर तबाह हो जाता है, पूरा खेती तबाह हो जाता है। तो उनके पास अगर कोई कागज है या नहीं है, तो सरकार अगर अडानी, अंबानी, रामदेव और दूसरे भू माफिया के लिए जमीन का डाइवर्सन कर सकती है, उनको दूसरे काम के लिए दे सकती है, तो जो वहाँ पे केवल छोटी सी जमीन पे, छोटे से खेत पे, छोटे से जमीन पे घर बना के रह रहे हैं, उनको उस जमीन का आवंटन क्यों नहीं कर सकती, उस जमीन का पट्टा या उस जमीन का मालिकाना हक क्यों नहीं दे सकती। तो साथियों, ये स्पष्ट है कि जो ये सरकार है, ये केवल गरीबों को लाभ में और बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, उनके लिए जो तमाम देश में इस तरीके का माहौल बना रही है। और अभी जैसे बिहार में, अभी साथी ने नागरिकता की बात की, बिहार में जो अभी जो वहाँ पे वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, जो शुरू किया है अभी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। वो चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता। चुनाव आयोग का काम किसी का नागरिकता तय करना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग वही काम कर रहा है और एक काम पूरे देश में करने वाला घोषणा भी कर चुका है। तो साथियों, एक बंद करो। आसाम से आके आप धरना दे रहे हैं, प्रमुख मांग क्या है आपकी? पूर्ण राजनीति न करो। आसाम में मुसलमानों टारगेट करी राजनीति करो, बंद हो करो। रहा है, इल्लीगली मुसलमानों टारगेट करी राजनीति करो, बंद करो। इलेक्शन का पहले बांग्लादेশের নামত মুসলমানদের হারাশাস্তি করা বন্ধ করো। कुरियल को एक मिट्टी नहीं बांग्लादेশের নামত মুসলমানদের অত্যাচার করা বন্ধ করো। पहले देने के बाद हम लोग মুসলমানদের অত্যাচার করা বন্ধ করো। समर्थन कर दिया।
उच्चतम पहले मंत्री एवं रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, मुसलमान पहले लोगों को रिहेबिलिटेशन अत्याचार करा बाद बंद वेब करो। एक्शन और अखोल पुल बैक वैज्ञानिक को हम लोग को परिवर्तित बंद करना। बंद करना चाहिए। मोहम्मद जो अली खलीफा जिंदाबाद। इंडियन लोग को पुल बैक कर रहा है बांग्लादेश में, उसी इलीगल पुल बैक बंद करना चाहिए। इसलिए हम लोग एसएसपी दिल्ली में जिंदाबाद। आया है, एसएसपी जिंदाबाद। डेमोन्स्ट्रेशन के दे मोहम्मद दिया खलीफा जिंदाबाद। है। इसलिए असम सरकार और भारत सरकार এই সব ইলিগেল অ্যাকশন বন্ধ করে দিয়েছে। तानाशाही बंद करो।